Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about an important cycle in the environment, that is the nitrogen cycle. It is also an important part of the nitrogen metabolism for better understanding of the various processes that are associated with the nitrogen. So the nitrogen being an element is the most abundant element on the earth. It is present in the gaseous form in the earth's atmosphere. Approximately 78% of the earth's atmospheric gases have nitrogen. So first of all, the nitrogen is a very essential component for all of the living organisms, whether they are plant, they are bacteria, or they are animal, or any kind of the living organism. So even the virus also, the nitrogen is the most important compound other than these three, carbon, hydrogen, and oxygen. All the organic things, all the hydrocarbon things are made up of carbon, hydrogen, oxygen. Along with them, nitrogen, sulfur, and phosphorus. These are also important. So these are most important six elements in any living system. सो इंडिविजुअली वाई नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन कहाँ पर फॉर्म होती है, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फॉर्म करती है, इसको समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड वाई नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट. सो नाइट्रोजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन ऑल द एंजाइम्स. लिविंग प्रोसेस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सब में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं. ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स and proteins are made up of the amino acid, and we should know that amine group is having nitrogen. So this nitrogen is the important component of all the enzymes. Although other than the enzymes, there are several things which are having the nitrogen. बहुत से biomolecule होते हैं जिनके पास nitrogen है. That is why for the accumulation of that nitrogen, the nitrogen is very very important. तो nitrogen का source हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, depend करता है organism to organism. Plant can directly take nitrogen, the fixed nitrogen, whereas animals or the humans takes nitrogen from their diet. जो भी हम खाते हैं वहां से हमें नाइट्रोजन मिलता है. जरूरी क्यों है? क्योंकि एंजाइम्स बनाना, हार्मोन्स बनाना, विटामिन्स बनाना, सभी में नाइट्रोजन एज अ बायोमोलिक्यूल काम करता है, क्योंकि एलिमेंट है और जितने भी बायोमोलिक्यूल लाइक लिपिड है, प्रोटीन है, सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो सकता है. अदर देन दैट, डीएनए एंड आरएनए, the nucleic acids are also having nitrogenous bases, the adenine, guanine, cytosine, and all that. So they are also having nitrogenous bases which are made up of the nitrogen. So we can say that nitrogen is the most essential part along with the carbon, nitrogen, and oxygen. And if I talk about the amount, it is present 78% in the Earth's atmosphere. So why we are taking it from the diet and why the plants are not taking it directly? So there is a challenge with this nitrogen, that this is present in the dinitrogen form and it is highly inert, having triple covalent bond. Let me draw it. The nitrogen which is present in the atmosphere and in the abundant amount 98% is present in the nitrogen triple bond nitrogen form. These are three covalent bonds and it is not freely available to the organisms. जिस तरह से और सभी गैसेस फ्रीली अवेलेबल होते हैं, नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता. दैट इज व्हाई इट हैव टू बी फिक्स्ड. इसको फिक्स करके फिर ऑर्गेनिजम्स को दिया जाता है. तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो इसको गेन करते हैं वो होते हैं प्लांट्स. प्लांट्स के पास जैसे ही नाइट्रोजन आ जाती है, नाइट्रोजन इसको फिक्स कर लेते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म्स में चेंज कर लेते हैं और फिर ऑर्गेनिक फॉर्म्स को आगे पास कर देते हैं डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में. तो हर एक इकोसिस्टम में हर एक ट्रॉपिक लेवल पर नाइट्रोजन ऑपरेट होती रहती है. इट मीन्स अल्टीमेटली प्लांट भी डायरेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, प्लांट भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले फिक्स कर पाते हैं. यानी फिक्स कर पाएगा कोई ऑर्गेनिज्म तब प्लांट ले पाएंगे. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बहुत मेथड होते हैं. कुछ बायोलॉजिकल मेथड है मेन, उसके अलावा इंडस्ट्रियल मेथड भी होता है, जैसे हैबर-ब्रॉस प्रोसेस से अमोनिया बनाई जाती है, या नेचुरली भी. नेचुरली बायोलॉजिकल तो है ही है, उसके अलावा थंडरस्टॉर्म के टाइम पर भी एसिड्स बनते हैं जो डिसोसिएट होकर नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते रहते हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है डाई नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो इनर्ट है, अवेलेबल नहीं है, उसको तोड़कर अवेलेबल फॉर्म में जो है सॉइल के अंदर पहुंचाना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है. मेथड अलग अलग हो सकते हैं. मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल होता है. 90 to 95% तक नाइट्रोजन फिक्सेशन बायोलॉजिकल होता है, यानी बैक्टीरिया करते हैं. तो सॉइल के अंदर नेचुरली ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तोड़कर सॉइल में नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में पहुंचा देते हैं. ठीक है, ध्यान रहे, अमोनिया, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव और NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, ये कुछ तीन फॉर्म है जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं आफ्टर फिक्सेशन. तो मोस्टली अमोनिया पाया जाएगा क्योंकि ज्यादातर प्रोसेस से, बिकॉज बायोलॉजिकल फिक्सेशन सबसे ज्यादा होता है और उससे अमोनिया ही बनती है, तो सॉइल के अंदर ये इनऑर्गेनिक फॉर्म मिलेगी.
ये इनऑर्गेनिक फॉर्म हालांकि तुरंत चेंज होती है, जिसको नाइट्रिफिकेशन हम कहते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. सो इट वाज अबाउट द बेसिक्स. ये कुछ इनऑर्गेनिक फॉर्म है, खुद N2, अमोनिया, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, दीज आर द इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ द nitrogen. Now we will discuss about the cycle. This was the basics about the nitrogen cycle. Let's just see the nitrogen cycle. देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यहां से स्टार्ट होता है नाइट्रोजन साइकिल. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म में है, वो डायरेक्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल नहीं है. ओके, सो फिक्सेशन के थ्रू, नाइट्रोजन फिक्सेशन पहला स्टेप होता है. फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन चेंज होती है अमोनिया में मेनली. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, जो कि बैक्टीरिया करते हैं, दिस वन, दिस व्हिच आई एम शोइंग विद द ब्लू कलर नाउ. सो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से N2 अमोनिया में चेंज होती है. उसके अलावा हैबर-बॉस प्रोसेस, ये मैंने सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है, नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन टाइप्स को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. बायोलॉजिकल को अपकमिंग वीडियोस में और डिटेल में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि बैक्टीरिया करते हैं, ये एनएरोबिक प्रोसेस है, रिडक्टिव प्रोसेस है. रिडक्शन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में, और बैक्टीरिया करते हैं. ठीक है, एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, उसकी हेल्प से. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू अमोनिया बन जाती है. इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन प्रोसेस, हैबर प्रोसेस के थ्रू भी अमोनिया बनती है. तो मैंने दोनों एरो दिखाए हैं, 1 and 2, यू कैन सी. अदर देन दैट, थंडरस्टॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, दिस इज द थर्ड वन. इसके थ्रू भी नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर्म बन सकते हैं. तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, चाहे कोई भी मेथड रहे, बायोलॉजिकल, हैबर और थंडरस्टॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन. थंडरस्टॉर्म में क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्राइट या नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट फॉर्म, दोनों में चेंज हो सकती है. तो ओवरऑल चाहे कोई भी सोर्स रहे, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, NO3 नेगेटिव. तो फिक्सेशन के अंदर क्या होता है, डाई नाइट्रोजन का ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी वो अदर इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में, कौन कौन सी 3 इनऑर्गेनिक फॉर्म, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट, इन 3 फॉर्म्स में चेंज होकर सॉइल के अंदर आ जाती है. ये जो बॉक्स मैंने दिखाया, दिस वन, this is the soil, be remember. Earlier the nitrogen was in atmosphere, ATM nitrogen. Now it has been fixed via either method, biological, Haber or thunderstorm. There are 3 methods. ये हम डिटेल में पढ़ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो. तो फिक्सेशन के बाद अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट बन गए सॉइल में. दिस वाज द फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में होता है नाइट्रिफिकेशन. This was the nitrogen fixation step. Next is the nitrification step that I should draw here. नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, देखिए मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में आई है आफ्टर फिक्सेशन, वो अमोनिया की फॉर्म में है. ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रोजन जो सॉइल के अंदर है इनऑर्गेनिक, प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं. एक्सेप्शनली अमोनिया या नाइट्राइट भी ले सकते हैं, लेकिन मेनली नाइट्रेट फॉर्म में प्लांट्स लेते हैं. और हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एक बार प्लांट के अंदर चली जाए, तो फिर आगे ट्रॉपिक लेवल्स में प्लांट अपने आप उसको ट्रांसफर कर देंगे. क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग कि फ्री नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, उसको डायरेक्ट कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकता. पहले तो फिक्स करना पड़ता है अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में, फिर उनको फाइनली कौन लेते हैं, प्लांट लेते हैं, और वो भी नाइट्रेट फॉर्म में. तो अमोनिया जो कि सबसे ज्यादा बनी है, बायोलॉजिकल जो कि 90% होता है, हैबर जो कि 5% है, और थंडरस्टॉर्म जो कि 5% है. तो लगभग 95% नाइट्रोजन जो फिक्स हुई है वो अमोनिया की फॉर्म में फिक्स हुई है. तो नाइट्रिफिकेशन एक स्टेप होता है जिसमें अमोनिया नाइट्रेट में चेंज होती है, नाइट्रेट और वाया नाइट्राइट. यानी पहले अमोनिया नाइट्राइट में चेंज होगी, NO2 नेगेटिव में, फिर NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में चेंज होगा. दोनों काम बैक्टीरिया करेंगे, यानी पूरा नाइट्रिफिकेशन कि अमोनिया का चेंज हो जाना नाइट्रेट में वाया नाइट्राइट, दोनों काम बैक्टीरिया करके देंगे. यहां पर जो बैक्टीरिया काम करते हैं उनको कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. नाइट्रिफिकेशन करवाने वाले बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं, और इसमें दोनों क्लासेस इंक्लूड होती हैं. ठीक है, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इसको AOB बोलते हैं, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, प्लस इसमें आर्किया भी इन्वॉल्व होते हैं, अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्की बैक्टीरिया, इसको AOA कहते हैं. देखिए अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर ध्यान देने की ये बात है.
तो नाइट्रिफिकेशन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और एरोबिक प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन हो रहा है प्लस ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, जबकि नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने यहां भी लिखा हुआ था रिडक्टिव प्रोसेस था और एनएरोबिक था। तो ये भी चीज नोटेबल है। यहाँ बैक्टीरिया लगते हैं, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया यहाँ लगते हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, और कुछ बैक्टीरिया यहाँ लगते हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं, जैसे नाइट्रोबैक्टर। ये दो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। इसके अलावा भी बैक्टीरिया होते हैं। जनरली एक ट्रिक है कि जिनमें एसओ लगा होता है, एसओ, वो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं, और जिनमें एसओ नहीं लगा, जैसे नाइट्रोबैक्टर, वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो पहले मैं कुछ बैक्टीरिया दिखा रहा हूं जो अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं, फिर कुछ बैक्टीरिया लिखेंगे जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करेंगे। ध्यान रहे पूरा मिलाकर नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, केवल अमोनिया का नाइट्राइट बनना नाइट्रिफिकेशन नहीं है। अमोनिया जब पूरी नाइट्रेट में बदल जाएगी सॉइल के अंदर, ठीक है, क्योंकि सारा अमोनिया नाइट्रेट में चेंज हो रहा है, उसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस और यहाँ ऑक्सीजन लगती है। तो कुछ बैक्टीरिया बता रहा हूं, जैसे नाइट्रोसोमोनास, यहां देखिए एसओ लगा है, ठीक है, नाइट्रोसोकोकस, उसके अलावा नाइट्रोसोस्पायरा। ये तीनों तो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, यानी ये अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, एओबी। उसके अलावा कुछ आर्की भी होते हैं, आर्की का नाम लिख देता हूं, नाइट्रोसो क्यूमिलस और नाइट्रोसोस्फेरा। देखिए ऐसा नहीं है कि अमोनियम ऑक्सीडाइजिंग आर्की जो है वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते, नहीं, ये मिक्स कैटेगरी है। यानी दोनों चीजों में अमोनिया से नाइट्राइट बनाने वाले भी आर्की भी होते हैं और बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ये आर्की है, काम वही कर रहे हैं, और वो बैक्टीरिया है। सिमिलरली अब कुछ और बैक्टीरिया लिखते हैं जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है, जैसे कि नाइट्रोबैक्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोसोमोनास था, इसमें नाइट्रोबैक्टर है। नाइट्रोस्पायरा, इसमें एसओ नहीं लगा, देखिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी बैक्टीरिया को हम लिख दें। नाइट्रोसोमोनास था, लेकिन यहां नाइट्रोमोनास नहीं होता, नाइट्रोकॉकस। तो ये कुछ तीन बैक्टीरिया हैं, ये ए ओ बी ही हैं, यहाँ आर्की नहीं है। तो दोनों चीजें इंक्लूड हो सकती है, बैक्टीरिया भी आर्की, बट आर्की मेनली कहां पर है, अमोनिया को नाइट्राइट बदलने में हेल्प कर रहे हैं। ये कुछ बैक्टीरिया जो आप याद रख सकते हैं। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिया का सॉइल के अंदर नाइट्रेट में बदल जाना। हालांकि सॉइल के अंदर ये काम बैक्टीरिया ही कर रहे हैं, बट ये बैक्टीरिया कैसे हैं, या प्रोसेस कैसा है, एरोबिक, और ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इन्वॉल्व होगी। मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ दोनों के लिए, बैक्टीरिया रफ कर रहा हूँ, बैक्टीरिया आप नोट कर सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने लिखा है रिकॉर्डिंग से। दोनों के लिए दो रिएक्शन होंगी क्योंकि ये स्टेप्स में हो रहा है ये काम। जब पहले अमोनिया जो है नाइट्राइट में चेंज हो रही है, तो दो मॉलिक्यूल अमोनिया के 2NH3 प्लस 3 ऑक्सीजन गैस, देखिए ऑक्सीजन गैस लगी है, इसलिए ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। बैक्टीरिया यहाँ पर, चलिए मान लीजिए नाइट्रोसोमोनास लिखा है, तो मैं नाइट्रोसोमोनास ही लिख देता हूँ, ऑल्दो मैंने अभी काफी बैक्टीरिया लिखे थे, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जब अमोनिया ऑक्सीजन गेन करती है तो वो बनाती है नाइट्राइट का एनायन, प्लस प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं 2, और 2 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। तो इस तरह से देखिए नाइट्राइट बन जाती है। अब क्या होता है, जो नाइट्राइट बनी है 2NO2 नेगेटिव, ये फिर से ऑक्सीजन गेन करती है, यानी यहां भी ऑक्सीजन चाहिए, पूरा ही प्रोसेस ऑक्सीडेटिव है। ऑक्सीजन गेन करके बैक्टीरिया, मान लीजिए नाइट्रोबैक्टर, कोई भी बैक्टीरिया लिख सकते थे, एक लिख रहा हूं मैं, अभी मैंने लिखे थे इससे पहले बैक्टीरिया, 2NO3 नेगेटिव। इस तरह से नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। दो स्टेप क्लियर है साइकिल के, पहले नाइट्रोजन फिक्स होकर इन 3 फॉर्म्स में आती है, अमोनिया, नाइट्राइट और नाइट्रेट। जो बायोलॉजिकली हैबर प्रोसेस से अमोनिया बनी वो नाइट्राइट बन जाती है वाया नाइट्राइट। थंडरस्टॉर्म से जो नाइट्राइट बनी थी वो भी डायरेक्ट चेंज होती रहती है नाइट्रेट में। यानी सॉइल के अंदर सारी नाइट्रोजन एट लास्ट किस फॉर्म में चेंज होती है, नाइट्रेट फॉर्म में चेंज होती है। यहां से दो प्रोबेबिलिटी बनती है, या तो नाइट्रेट वापस डाई नाइट्रोजन बन जाता है जिसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं, ये प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन, या ये प्लांट के अंदर चला जाता है। अब इसको प्लांट गेन कर लेते हैं
हम तो फिर भी सॉइल में नहीं जाएंगे डायरेक्ट नाइट्रोजन ले लें, हम नाइट्रोजन प्लांट से ही लेते हैं, जो कहलाता है एक्विजिशन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन। देखिए ये साइकिल है, ये ऑपरेट हो रही है अलग अलग जगह पर। पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, फिर हमने पढ़ा वो सॉइल में आ चुकी, सॉइल में भी नाइट्रेट की फॉर्म में आ गई। अब ये नाइट्रेट NO3 नेगेटिव अगर वापस डाइनाइट्रोजन में चेंज हो जाए, यानी प्लांट में ना जाए, तो ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये भी बैक्टीरियल प्रोसेस है, इसमें भी बैक्टीरिया ही करते हैं काम, यानी सॉइल में पाने जाने वाले कुछ बैक्टीरिया नाइट्रेट को वापस नाइट्रोजन में बदलने की कैपेसिटी रखते हैं, जो कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। एक एक चीज ध्यान से समझे कि अमोनिया से नाइट्रेट बनना नाइट्रिफिकेशन था, नाइट्रेट से वापस नाइट्रोजन बनना जो बड़ी मुश्किल से फिक्स की गई थी BNF के थ्रू या किसी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन से, वो वापस नाइट्रोजन बन रहा है। तो यहाँ कुछ स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, ये रिडक्टिव प्रोसेस है, यहाँ रिडक्शन होता है नाइट्रोजन का, सॉरी नाइट्रेट का वापस डाइनाइट्रोजन में। तो वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट यूज किए जाते हैं या कुछ अल्कली मटेरियल्स यूज कर लिए जाते हैं। ये भी एनएरोबिक प्रोसेस है। एनएरोबिक प्रोसेस दूसरा जो था वो था नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रिफिकेशन एरोबिक था, ऑक्सीजन चाहिए थी, यहाँ फिर से ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो इनको करवाने वाले बैक्टीरिया, चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो चाहे डीनाइट्रिफिकेशन हो, इनको करवाने वाले बैक्टीरिया एरोबिक भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी, लेकिन प्रोसेस जो है वो एनारोबिक है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एनारोबिक है। तो बैक्टीरिया अपने एक पर्टिकुलर पार्ट को एनारोबिक बनाकर ये चीजें कर सकते हैं। हो सकता है बैक्टीरिया एरोबिक हो और फिर भी वो एक काम कर पा रहा हो, तो वो किसी एक सर्टेन पार्ट को एनारोबिक बना लेता है जहां पर वो रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन को वो कैरी आउट करा सकते हैं। जैसे कि लैग हीमोग्लोबिन होता है एक पिगमेंट जो ऑक्सीजन को खा जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान, ऑक्सीजन स्वेंजर होता है, पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में हम उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सो दिस इज सिंपली डीनाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होते हैं उनके एग्जांपल नाम लिख देता हूं मैं, जो डीनाइट्रिफिकेशन कराते हैं, इसका मतलब नाइट्रेट को वापस डाइनाइट्रोजन बनाते हैं। एक होता है सूडोमोनास, ओनली जीनस याद रख सकते हैं, स्पीसीज जो होती है वो डीनाइट्रिफिकेंस होती है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्पीसीज नहीं लिखेंगे, अदरवाइज नाम से पता चलता है डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं। उसके अलावा थियोबैसिलस, डीनाइट्रिफिकेंस, ये एक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा पैराकोकस, डीनाइट्रिफिकेंस, क्लॉस्ट्रिडियम भी होता है। ये कुछ बैक्टीरिया है जो डीनाइट्रिफिकेशन यानी वापस नाइट्रेट को चेंज करते हैं किसमें, एंटो फॉर्म में, ये कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो यहां तक साइकिल जो है अभी मैं इसको समराइज कर देता हूँ। फिक्सेशन अमोनिया NO2 और NO3 फॉर्म में, फिर अमोनिया नाइट्रेट में चेंज होती है, ये नाइट्रिफिकेशन, दिस वाज एरोबिक प्रोसेस। अगेन द नाइट्रेट हैव रिवर्स बैक टू नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन फॉर्म इनटू द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। तीनों ही काम बैक्टीरिया करते हैं क्योंकि तीनों काम सॉइल में हो रहे हैं। फिक्सेशन में एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में पहुंचाई जा रही है, लेकिन बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट है, सॉइल में। और प्रोसेस है रिसेंटली डिस्कवर्ड जिसको एनामॉक्स कहते हैं। ये तीन शब्दों से मिलकर बना है NMOX, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए डीनाइट्रिफिकेशन के ही जैसा प्रोसेस है एनामॉक्स, यहां मैंने लिखा भी है दिस वन एनामॉक्स, यहां जो मैं शो कर रहा हूं। एनामॉक्स क्या होता है कि देखिए केवल नाइट्रेट डाइनाइट्रोजन नहीं बनता, पहले यही समझा जाता था कि नाइट्रेट जो है वो वापस डाइनाइट्रोजन बन जाए तो वो डीनाइट्रिफिकेशन कहलाएगा, विच वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। बट ये देखा गया कि अमोनिया और नाइट्राइट भी वापस डाइनाइट्रोजन बन सकते हैं, और ये प्रोसेस भी एनएरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें अमोनिया का वापस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है बट एनएरोबिक, और यहाँ भी बैक्टीरिया काम करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को एनामॉक्स बैक्टीरिया और प्रोसेस को एनामॉक्स बोला गया। एन का मतलब एनएरोबिक, AMM का मतलब अमोनिया, OX का मतलब ऑक्सीडेशन, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखिए मैंने इस कलर से दिखाया है, येलो कलर से, येलो कलर से ये जाते हुए ये एरो जा रहा है जो वापस डाइनाइट्रोजन बना रहा है, और नाइट्रेट से भी येलो एरो जा रहा है जो डाइनाइट्रोजन बना रहा है। तो डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट से डाइनाइट्रोजन बनती थी, एनामॉक्स में अमोनिया या नाइट्राइट से वापस
डाई नाइट्रोजन बनती है। तो यहाँ बस बैक्टीरिया अलग हो जाएंगे, प्रोसेस को एनामॉक्स बोलते हैं, एनएरोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड रिसर्च है, हार्डली 15 से 20 साल में इसको डिस्कवर किया गया है, अभी पहले नहीं डिस्कवर्ड था ये प्रोसेस। तो कुछ बैक्टीरिया जो एनामॉक्स करते हैं उनके नाम बता देता हूँ। ब्रोकैडिया, this is Anamox bacteria. Other than that, Cunenia, Kuenenia, and one is the Jetania, Enia. So hardly there are maximum 4 to 5 bacteria which can do the process of Anamox. Although it is rare, denitrification is most common in terms of the changing of inorganic nitrogen, again revert back to dinitrogen form. तो डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट चेंज होता है, एनामॉक्स में अमोनिया और नाइट्राइट भी चेंज होते हैं। ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं। दिस इज द फोर्थ प्रोसेस। यहाँ तक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन और एनामॉक्स जो है वो हमने डिस्कस किए हैं। सारा काम देखिए सॉइल पूल में हुआ है, सारा काम बैक्टीरिया नहीं किया है। अब क्या होता है, फाइनली इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी प्लांट में चले जाते हैं फ्रॉम सॉइल दिस नाइट्रेट फॉर्म। देखिए नाइट्रोजन चाहिए प्लांट को, तो किसी भी फॉर्म में आए, तो प्लांट में नाइट्रोजन किस फॉर्म में आई है, नाइट्रेट फॉर्म में, ये याद रखिएगा। प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले पाया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया बनी। प्लांट अमोनिया नहीं ले पाया, अमोनिया नाइट्रेट बनी नाइट्रिफिकेशन से। नाइट्रेट भी जो बना वो वापस थोड़ा बहुत डीनाइट्रिफिकेशन से क्या बन चुका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन चुका। लेकिन फिर नाइट्रोजन जो बचा नाइट्रेट, वो आ गया प्लांट के अंदर। तो प्लांट देखिए टॉक्सिक फॉर्म लेते हैं, कितना अच्छे होते हैं प्लांट, हमारे लिए कितना काम करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्लस नाइट्रोजन भी टॉक्सिक फॉर्म को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तीनों ही फॉर्म N2, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सारे टॉक्सिक फॉर्म है और ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है। हम एक सेल से दूसरी सेल में एक्यूमुलेट नहीं कर सकते इन फॉर्म्स को। आप एक सेल से दूसरी सेल में अमोनिया नहीं भेज सकते अगर डिवीजन के टाइम नाइट्रोजन देना चाहते हैं। हम नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म्स में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म्स जैसे एंजाइम्स, जैसे अमाइनो एसिड्स, जैसे प्रोटीन्स, जैसे अमाइड्स, जैसे विटामिन्स, जैसे हार्मोन्स एक्सेट्रा, या और कोई सेकेंडरी कंपाउंड्स अगर प्लांट है। तो ऑर्गेनिक फॉर्म अलग होते हैं नाइट्रोजन के, और इनऑर्गेनिक फॉर्म जो है वो नाइट्रेट है या ये सब। तो प्लांट ने इनऑर्गेनिक फॉर्म ले लिया। अब प्लांट के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं है, यानी आगे का काम बैक्टीरियल नहीं है, ठीक है। एक स्टेप ही बैक्टीरियल होगा जो बाद में डिस्कस करेंगे। प्लांट में आने के बाद नाइट्रेट, प्लांट एक पूरा मैकेनिज्म करता है जिसको नाइट्रोजन एसिमुलेशन कहते हैं। प्लांट इस नाइट्रेट को ठिकाने लगाकर एसिमुलेट करके हेल्दी फॉर्म्स यानी ऑर्गेनिक फॉर्म्स में चेंज कर लेता है। अब प्लांट ने ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज कर ली नाइट्रोजन, तो हमारे लिए आसानी हो गई। हम जो हर्बीवोर हैं या हम किसी और लेवल पर भी अभी आर ओमनीवोरस, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हम खा रहे हैं उसने अल्टीमेटली नाइट्रोजन प्लांट से ली होगी। तो फिर ये सारी नाइट्रोजन आगे चली जाती है कहाँ पर, एनिमल बायोमास में या किसी भी बायोमास में जो प्लांट पर फीड कर रहा है, ठीक है। इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो भरपूर मात्रा में प्लांट में भी, हमारे अंदर भी, सब कहीं नाइट्रोजन आ जाती है। और कैसी नाइट्रोजन, हेल्दी नाइट्रोजन। यानी आपको, हमें, बैक्टीरिया को या कोई भी एनिमल वगैरह सबको नाइट्रोजन कहाँ से मिली, प्लांट से। प्लांट को कहाँ से मिली, सॉइल से, नाइट्रेट की फॉर्म में। सॉइल में नाइट्रेट कहाँ से आए, अमोनिया से। अमोनिया कहाँ से आई सॉइल में, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। ये देखिए एक साइकिल है, अब आप लिंक कर पा रहे होंगे। अब देखिए प्लांट बायोमास या एनिमल बायोमास जब उनकी डेथ हो जाती है तो या तो वो बर्न किए जा सकते हैं, जैसे हिंदू स्पिरिचुअलिटीज में जब हम मर जाते हैं तो हमें बर्न किया जाता है। तो हमारे बायोमास में से, ये मैंने बर्निंग के लिए दिखाया है ये पैटर्न, प्लांट को जला दिया जाए या एनिमल बायोमास को बर्न कर दिया जाए तो सारे जो एलिमेंट्स है वो वापस एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो सिमिलरली नाइट्रोजन भी गैसियस फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यानी एटमॉस्फेयर से शुरू हुई थी और देखो वहीं चली गई। ये तो बात हुई रेयर, प्लांट को तो सब कोई आग नहीं लगाते, या इवन एनिमल बायोमास भी, कोई जानवर मर गया उसको कौन जलाता है। कुछ स्पिरिचुअलिटीज में या कुछ रिलीजन्स में जो है डिके किया जाता है, जलाया नहीं जाता, ठीक है, जैसे क्रिश्चियनिटी में और मुस्लिम्स में। तो वहां क्या होता है, वहां डिकेइंग होती है। सॉइल में मान लीजिए उनको डिके कर दिया तो वहां पर सॉइल में डिकेइंग बैक्टीरिया होंगे, यानी अब फिर से बैक्टीरिया का काम शुरू हो गया। प्लांट के अंदर नाइट्रेट आना एक्यूमुलेशन था, वो आगे चली गई थी। अब कोई भी बायोमास, चाहे एनिमल मरे चाहे प्लांट मरे, वो डिके होते हैं। ये रेड कलर से मैंने दिखाया है। तो डीके के दौरान सारे एलिमेंट्स रिलीज किए जाते हैं, कार्बन भी बाहर निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलती है, सल्फर, पोटेशियम सब बाहर निकल जाता है मिट्टी में वापस। तो जो नाइट्रोजन होती है इंडिविजुअली, यहाँ तो हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, उसको बाहर निकालने के लिए स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन, और यहाँ भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व है।
इस बैक्टीरिया को कहते हैं अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को, चाहे वो हार्मोन हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे विटामिन, प्रोटीन, कुछ भी हो, उसको चेंज कर देते हैं वापस अमोनिया में, ठीक है, इनटू द सॉइल, यानी वापस जमीन में अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजन को भेज देते हैं। आप देखिए जब गला सड़ा रहे हैं किसी भी पदार्थ को, कोई चाहे प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, चाहे एनिमल है, कोई जानवर जिसके अंदर नाइट्रोजन थी जो मर चुका, उसको जब ये बैक्टीरिया सड़ाते हैं तो अमोनिया की फॉर्म में सॉइल में वापस पहुंचा देते हैं नाइट्रोजन। देखिए यहाँ मैंने दिखाया भी है ये प्रोसेस, ये कहलाता है अमोनिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिफिकेशन, इसको भी बैक्टीरिया करते हैं, ठीक है। अमोनिफिकेशन करने वाले कुछ बैक्टीरिया के मैं नाम बता देता हूं, जैसे क्लॉस्ट्रिडियम, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटियस। एक पूछा जाए तो प्रोटियस ऐसा बैक्टीरिया है जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। उसके अलावा बैसिलस वल्गैरिस स्पीसीज है, ठीक है, बैसिलस रेमोसिस, ये 4 बैक्टीरिया हैं जो अमोनिफाइंग बैक्टीरिया है। ये अमोनिफिकेशन करते हैं। अमोनिफिकेशन का मतलब डेड डिकेइंग मटेरियल से उसको डिके करके अमोनिफाई करके अमोनिया में चेंज करते हैं। देखिए उसको जला दिया गया तो वो नाइट्रोजन बन गया था, अदरवाइज वो अमोनिया बन गया सॉइल में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमोनिफिकेशन के दौरान जब डेड और डिकेइंग चल रहा है तो कुछ बैक्टीरिया अमोनिया को सॉइल में नहीं, गैस फॉर्म में भी रिलीज कर देते हैं एनवायरमेंट में। तो जब अमोनिया गैस फॉर्म में रिलीज की जाएगी, देखिए गैस फॉर्म में, तो कहलाएगा वोलेटाइजेशन। ये भी बैक्टीरिया करते हैं। एक प्रोसेस और हम ऐड कर सकते हैं अमोनिफिकेशन में, इसको मैं रफ कर रहा हूं बैक्टीरिया को, यू शुड राइट डाउन द नेम फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। एक और प्रोसेस होता है वॉलेटिलाइजेशन। उसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया गैस में चेंज होती है, ना कि सॉइल। ये कहलाता है वॉलेटिलाइजेशन। ये काम भी बैक्टीरिया करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया के, आप गूगल कर सकते हैं। अभी मेरी नॉलेज में नहीं है कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो वॉलेटिलाइजेशन करते हैं। सो ये भी कैटेगरी है, ये भी बैक्टीरियल प्रोसेस है। उसके अलावा एक और प्रोसेस होता है इमोबिलाइजेशन साइकिल में, यानी केवल नाइट्रेट पर प्लांट का ही अधिकार नहीं है कि प्लांट ही नहीं लेंगे सॉइल से। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिन एज अ फूड जो अमोनिया को या नाइट्रेट को सॉइल से ले लेते हैं खुद। तो ये मैंने पिंक कलर दिखा हुआ है, इसको कहते हैं इमोबिलाइजेशन। तो कुछ नाइट्रेट या कुछ अमोनिया बैक्टीरिया के पास भी चली जाती है, उसको कहते हैं बैक्टीरियल इमोबिलाइजेशन। तो ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ प्रोसेस थे नाइट्रोजन साइकिल के। नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में है, अनबाइंडेड फॉर्म में है, फ्री नहीं है, उसको फ्री करते हैं बैक्टीरिया फिक्सेशन से या अदर प्रोसेस से, या आप डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं। फिर नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट वापस डाइनाइट्रोजन बन सकता है, ठीक है, या अमोनिया या नाइट्राइट भी वापस डाइनाइट्रोजन बन सकते हैं। या फिर क्या होता है, प्लांट के अंदर आ जाते हैं एक्विजिशन, प्लांट या एनिमल से वो पहुंचते हैं नाइट्रोजन, तो वो डिके होकर अमोनिफाई वापस अमोनिया बन सकती है सॉइल में, ठीक है, या गैस भी बन सकती है वॉलेटाइजेशन, या वो जा सकती है बैक्टीरिया को भी इमोबिलाइजेशन। It was the detailed nitrogen cycle. If you are having any doubt, you can comment in the comment section. Thank you very much. Have a good time.